Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I will gonna solve chapter statistics with you from NCERT Exemplar. It's chapter number 15. So firstly I will give you a brief overview of the chapter and then we will start with the exercise. Okay. So statistics basically the chapter where we deal with these type of terms like mean, median, mode, dispersion, and all those kind of stuff. Like what is the middle value of the given sequence, or what is the maximum value? All those kind of stuff we read in this chapter. So basically, starting with dispersion. So first thing first is mean. What is mean? Mean is the basically the average of the data given to you. Basically जो आपको डेटा दिया रहेगा उसका जब अपन लोग एवरेज निकालेंगे मतलब सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उसको अपन लोग बोलते हैं मीन. ठीक है. और मीन के बहुत डेविएशन निकालते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन. सो दैट इज बेसिकली this thing. Then we have other terms like variance, standard deviation, all those kind of stuff. How to calculate standard deviation? Standard deviation is basically under root of this thing. इसको हम लोग बोलते हैं variance. और variance कैसे निकालते हैं? जो अपना मीन होता है उसको अपन लोग हर टर्म से माइनस करके उसको स्क्वायर करते हैं और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं. उससे जो निकलता है दैट वी कॉल एज वेरिएंस. एंड जब हम उसका अंडरवुड करते हैं वी विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. So this is the basic stuff. So then coefficient of variance is basic variation is basically अपन कितना deviate हो रहा है किसी मीन से उसको अपन लोग वहां से अपन लोग coefficient of variance निकालते हैं. मतलब अपना जो आंसर है वो कितना वेरिएबल आ रहा है वो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है और बाकी इसको निकालते हैं ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करके. So this is like you have to learn all those kind of things. Then these are the examples. So okay, let's start with the exercise. So let's start with the first question. Find the mean deviation about the mean of the distribution. अपने को साइज दिए हुए अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को इसका मीन डेविएशन निकालना है. तो अपन लोग इसको कैसे करते हैं ना इसमें अपने को पहले तो टेबल बनानी पड़ती है. टेबल बनानी पड़ती है. मैं आपको एक क्वेश्चन में टेबल बना के दिखा देता हूँ बाकी फिर मैं डायरेक्टली कर दूंगा. तो लाइक कैसे टेबल बनती है. टेबल ऐसे बनती है. We will take this one and mark as this. Okay. Then we will do what? We will take, we have to make since we have to calculate mean deviation, we have to create 5 blocks. So basically you have to take one more, then let me duplicate it. Okay. So what we are going to do with this, we are going to make blocks. This is 1, this is 2, sorry. Then this is 3, this is 4, and finally this is 5th. Okay, so this is my table and इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे ना इसमें अपन लोग ऐसा कुछ करेंगे. एक सेकंड थोड़ा कम से कम. So what we will do, we will create 5 blocks. जिससे मैंने बना दिया. इसमें 5 blocks में क्या होगा एक में मैं डालूंगा साइज एक में डालूंगा फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे करके. Like this column will constitute my size. Here I will take sizes. Okay, 20, 21, 22, 23 and 24. Okay, so this is my first column. Second column में मैं लूंगा frequency. ठीक है. तो firstly 6 है 20 की 21 की 4 then 5 1 4. ओके. तो ये मैंने दो जो कॉलम दिए होते हैं मैंने वो लिख दिए. अब मुझको ये बनाना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलता हूँ उसको. यहाँ पे एफ आई एक्स आई क्या है. एफ आई एक्स आई इज द बेसिकली मल्टीपल ऑफ दीज टू. तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे एफ माने फ्रीक्वेंसी और एक्स माने जो भी मेरा साइज है. तो ये मैं निकालूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से निकालूंगा 20 into 6 120, 21 into 4 is 84, then 22 into 5 is 110, then 23, then 24 into 4 96. ओके. एंड नीचे मैं सबको सम कैलकुलेट कर दूंगा. सम कितना आएगा इसका. सम आएगा 433 आ रहा है. ओके. सो दिस इज माय सिग्मा एफ आई एक्स आई
एंड टोटल फ्रिक्वेंसी भी निकाला, टोटल फ्रिक्वेंसी 6.10 और 1020, टोटल फ्रिक्वेंसी 20 है। ठीक, उसके बाद मैं करूंगा, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको बताया। जो भी मेरा एक्स आई है उसको मैं एक्स बार से माइनस कर दूंगा। एंड व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार मेरा मीन है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था। मीन का फॉर्मूला होता है टोटल सम, मतलब वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब 433। ये मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। कितनी है वो? 20। 433 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21.65। ठीक है, तो ये आ गया मेरा मीन। अब मुझको क्या निकालना है? मेरे को निकालना है मीन डेविएशन। तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, और इसका क्योंकि मेरे को निकालना है मीन डेविएशन, तो मुझको साइन से मतलब नहीं है, मैं इसका मॉड लूंगा। तो 21.65 माइनस 120 ऐसे 20 माइनस ऐसे करके मैं निकालूंगा। तो फर्स्टली 20 माइनस 21.65 इज 1.65। मैं साइन प्लस ही लूंगा क्योंकि मैंने मॉड लिया है। 1.65, देन 21 माइनस 21.65 इज 0.65। मैं एक टेबल पूरी बना दे रहा हूँ, बाकी आगे वाले में मैं सीधे डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। ठीक है, देन थर्ड वाले में 22 माइनस डिस्टिंग, तो वो आएगा 0.35, फिर आएगा 1.35, फिर आएगा 2.35। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव 2.35। ये आ गया मेरा एक्स आई माइनस एक्स। अब मुझको निकालना पड़ेगा, इसको मेरे को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। डी, इसको मैं डी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, डी आई से। तो ये हो जाएगा। अब मेरे को ये निकालना है, तो बेसिकली मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी से। तो 6 इंटू 1.65, 9.90, 9.90, देन 2.60, then 1.75, then we have 1.35। ये 1.35 into 1 है ना, तो 1.35 into 1.35 हो जाएगा। Then we have 2.35 into 4, which is 9.40। 9.40। ठीक है, अब वापस जैसे मैंने सिग्मा एफ आई क्या एक्स आई किया था, वैसे मैं इसका भी सिग्मा कर दूंगा, मतलब सबको ऐड कर दूंगा। तो आई एम गेटिंग 25। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया सिग्मा एफ आई डी आई। अब मीन डेविएशन निकालते कैसे हूँ? मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है जो मुझे इस क्वेश्चन में पूछा है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का सिग्मा जो मैंने निकाला है, मतलब 25, मतलब इसका सिग्मा 25 सिग्मा है ना। सिग्मा मतलब समझ रहे हो ना, सिग्मा इज बेसिकली सम। तो यहाँ पे ये है सिग्मा एफ आई डी आई जो है 25 डिवाइड बाय वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज सिग्मा एफ आई जो कि है 20 सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हो जाएगा 25/20, हो जाएगा 25 which is sigma FIDI upon 20, which is number of which is frequency, and this will come out to be equal to 1.25। तो मेरा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया मेरा 1.25। ये है मेरा मीन डेविएशन जो कि मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली अपने को दो चीज दी रहती है, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे अपन लोग पहले निकालते हैं सम ऑफ डेटा वैल्यूज बाय मल्टीप्लाइंग दिस एंड एडिंग दिस। उसके बाद हम लोग उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं टोटल, उससे हमको मीन मिलता है। फिर मीन से हम लोग निकालते हैं डीआईस, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग एफ आई डी आई निकालते हैं। उसका हम लोग सम करते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 20 से, देन वी गेट मीन डेविएशन। सो दिस इज द मेथड। अगले पे चलते हैं। अगले वाले में बोला है मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे अपने को मीन डेविएशन निकालना है, पहले अपन निकालता है मीन के अबाउट, यहाँ पे अपने को मीन डेविएशन निकालना है मीडियन के अबाउट। तो मीडियन के अबाउट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तीन चीज सेम रहेगी। पहले हम लोग लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे सी एफ, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई। उसके बाद मेरे को निकालना है, बस मेरे को जो मैंने यहाँ पे किया ना, जो मैंने यहाँ पे किया एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार की जगह एम आएगा, वेयर एम रिप्रेजेंट्स मीडियन, बाकी पूरा सेम रहेगा। और मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज द, मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब होता है जो एकदम सेंटर वाला टर्म होता है, जो एकदम सेंटर वाला टर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? मीडियन बेसिकली होता है सेंटर वाला टर्म। तो इसमें देखो टोटल सम कितना है, पहले वो देखते हैं अपन लोग।
अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, व्हाट इज सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ देखो कितना है, 2 + 3 5 + 8 13 + 3 16 +4 20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। ठीक है। और मेरे को चाहिए बीच वाला। तो बीच वाला कैसे हो गया? बीच वाला हो जाएगा, हम्म, एक मिनट, बीच वाला, इसमें बीच वाला निकालने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जो मेरा एफ है वो कैसे दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है मुझे 2 3 8 3 4। ये है मेरा एफ। अब मैं एक सी एफ भी निकालूंगा जो कि होती है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है, इन सबको मैं ऐड करते जाऊंगा। पहले तो 2, ये 2, फिर 2 + 3 5, ठीक है, फिर 5 + 8 13, फिर 13 + 3 16। तभी तो मुझे बीच वाला मिलेगा ना, और 16 + 4 20। ठीक है। तो इस तरफ से मैं लिखता हूँ। और इसमें एक और चीज है, अब मेरे को निकालना है कि मीडियन कौन सा है, मतलब बीच वाला पॉइंट कौन सा है। तो बीच वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो टोटल इवन है, तो मेरे को बीच वाला निकालने के लिए एम, मतलब एकदम बीच वाला निकालने के लिए, इसको हम लोग मीडियन बोलता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एम ई से। वो निकलेगा 20। जब भी इवन दिया जाए तो +1 करते हैं, ठीक है। 20 + 1/2 मतलब कौन सा टर्म हो गया, ये हो गया 21/2 मतलब 10.5 टर्म। कौन सा टर्म, 10.5 टर्म, 10.5 टर्म। ठीक। तो 10.5 टर्म कहाँ पे आएगा, 5 से 13 के बीच में आएगा। तो बस देख लो, टू, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ढंग से, तो यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 11, यहाँ पे था 12, यहाँ पे था 14, और यहाँ पे था 15। ठीक है। और मेरे को चाहिए 10.5, 10.5 आएगा इन दोनों के बीच में, 5 और 13 के बीच में। तो 5 और 13 के बीच में आएगा 10.5। इसका मतलब जो मेरा 10.5 टर्म है वो कौन सा हो गया, 12। क्योंकि मेरा 11 जो है वो तो 5 पे खत्म हो गया था। इसके बाद जितने भी होंगे वो 12, जब जब तक मेरा 13 रहेगा मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तब तक मेरा 12 रहेगा। और मेरा है 10.5, तो वो 5 के बाद आ रहा है, 13 के पहले आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा मीडियन है वो 12 हो गया। मीडियन क्या हो गया मेरा, मीडियन हो गया मेरा 12। इसका मतलब मेरा एम ई हो जाएगा, देखो ना, 50 टर्म तक मेरा 11th है, 5th से लेके आगे की जितने भी 13 तब तक मेरा 12 आएगा, तो 10.5 टर्म मेरा 12 भी होगा। तो बेसिकली मेरा मीडियन हो जाएगा 12। ठीक है। अब बस मेरे को जो डी आई में मैंने किया था एक्स आई माइनस एक्स बार, उसकी जगह मेरे को करना है एक्स आई माइनस एम ई। तो वहां से मुझे डी आई निकालूंगा, फिर मैं सिग्मा एफ आई डी आई निकालूंगा, और उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दूंगा। उससे निकल जाएगा मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो निकाला था उन्होंने निकाला था मीन डेविएशन अबाउट मीन, और यहाँ पे मैं मीडियन के अबाउट निकाल रहा हूँ। बेसिकली इसका मतलब है कि जो मेरा डेटा है वो मीडियन से कितना डेविएट कर रहा है, मीडियन से कितना दूर भाग रहा है। ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर एन इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो पहले तो मैं मीन निकालता हूँ, मीन कितना होगा। अबाउट द मीन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ना, हाँ, तो मीन कितना होगा, मीन होगा सम, मतलब 1 + 2 + 3 डैश 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 अप टू एन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है एन होंगे, क्योंकि मैंने एन टर्म्स दिए हैं। ठीक। तो ये कितना होगा, मेरे को पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है n n + 1/2, एन n + 1/2 होता है ना, तो बाई 2, और इसको n से और डिवाइड कर दो। ठीक। तो क्या होगा, मेरा n और n सब कट जाएगा, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इज n + 1/2। तो n + 1/2 इज माई मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या आएगा, n + 1/2। ठीक है। तो ये आएगा मेरा मीन। अब मुझको निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मैंने आपको बताया था कैसे करता हूँ। मीन डेविएशन इज नथिंग बट मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ना मुझे। ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं एक एक टर्म लूंगा, उसको मैं मीडियन से माइनस करूंगा, उससे मिलेगा मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर सबका मैं सम कर दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो पहला टर्म था मेरा 1, तो 1 को मैं माइनस करूंगा मीन से,
वो हो जाएगा n प्लस वन वन माइनस n प्लस वन बाई टू। और आपको याद होगा मैंने मॉड लिया था इसका, पूरे का मॉड लूंगा, ठीक। प्लस ऐसे करूंगा मैं टू के साथ, टू माइनस n प्लस वन बाय टू, प्लस ऐसे करते जाऊंगा मैं डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक जाएगा, जाएगा n तक, प्लस n माइनस n प्लस वन बाय टू, ठीक। दिस थिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है मेरे n, ठीक। ऐसे करके होगा। तो अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, वन बाई टू तो कॉमन ले लेता हूँ। वन सेकेंड। अब बेसिकली मेरे को आंसर ये निकालना है, बस मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें अपन, इससे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरे को बचेगा टू माइनस एन माइनस वन, मतलब मेरे को बचेगा अच्छा इसमें मेरे को फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर ऑफ टर्म्स गिनता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, देखो मेरा वन प्लस टू प्लस डैश डैश सब तो एन तक जाएगा, ये वन से लेके एन तक जाएगा। और या फिर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर एक बार मैं खोल के लिखूं तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे यहाँ तक टर्म सही रहेंगे, मतलब ऐसे लिखो, एक बार वन माइनस एन प्लस वन बाई टू, ये है मेरा पहला टर्म, ठीक है। ये है मेरा पहला टर्म, प्लस टू माइनस एन प्लस वन बाई टू, ये है मेरा दूसरा टर्म, ठीक। प्लस डैश 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 करते जाऊंगा, बीच में आएगा मेरा एक टर्म जो कि होगा मेरा एन माइनस वन एन माइनस एन प्लस वन बाई टू, मतलब एक टर्म ऐसा आएगा ना, एन माइनस वन बाय टू माइनस एन प्लस वन बाई टू, एक टर्म बीच में ऐसा भी आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एन तक जा रहा है ना बेसिकली, तो एन माइनस वन बाई टू का भी एक टर्म आएगा बीच में, ठीक। फिर अगला टर्म आएगा, ये था एन माइनस वन बाई टू माइनस एन प्लस वन, फिर अगला टर्म आएगा एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, ऐसा भी एक टर्म आएगा माइनस एन प्लस वन बाई टू करके। मैं बेसिकली इसको खोल के देख रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स है, ठीक है, ताकि सॉल्व करना थोड़ी आसान हो जाए। फिर ये चलता रहेगा, फिर आएगा एन प्लस थ्री बाई टू एन माइनस टू ऐसे करके चलता जाएगा ये, और फाइनली कहाँ तक जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन बाई टू तक जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन बाई टू तक जाएगा, ठीक। और इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, एन से। तो ये कैसे होगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे पहले वो देखते हैं अपन लोग। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे, देखो मैंने कितने टर्म्स लिखे, वन माइनस एन प्लस वन बाई टू से गया मैं एन माइनस एन प्लस वन बाई टू तक, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज देखो, मैं हर बार टू से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 अप टू एन माइनस वन बाई टू, और फिर मैं इसी चीज को मैं डबल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एन माइनस वन बाई टू तक जा रहा हूँ, और एन माइनस वन बाई टू को मैं डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन माइनस वन, और मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है बेसिकली, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ और डिवाइड बाय एन कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिखूं तो वो हो जाएंगे टू टाइम्स वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा एन माइनस वन बाई टू तक। इसको मैं टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद एन माइनस वन बाई टू टर्म्स और होंगे, कितने टर्म्स और होंगे, एन माइनस वन बाई टू टर्म्स, एन माइनस वन बाई टू टर्म्स, ठीक। इतने टर्म्स होंगे, और डिवाइड बाय एन तो था ही, तो वो चलता रहेगा, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसका मेरे को सम आता ही है, ये फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, तो वो क्या हो जाएगा,
टू बाई एन एज इट इज लिखा रहेगा, टू बाई एन एज इट इज लिखा रहेगा। एंड देन मैं इसका सम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या होता है एन एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा सम। तो ये तो मेरा एन है, इसमें मैं प्लस वन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो वो हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन बाई टू, और डिवाइड बाय क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू होता है। डिवाइड बाय टू हो गया, और यहाँ पे है कितना हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे ये आएगा एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई फोर एन। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा फाइनल आंसर। अब इसमें कहीं पे दिक्कत हो तो देख लो, देखो मैंने क्या किया है बेसिकली। मैंने बेसिकली ये किया है कि पहले तो मैंने इसको खोला, फिर देखा मैंने इसके कितने टर्म्स आ रहे हैं ऐसे करके। अब मैंने देखा कि यहाँ मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, इसके बाद मैं वापस चालू कर रहा हूँ बेसिकली। अब मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया एन माइनस वन बाई टू तक, फिर मैं देखो मैं एन माइनस एन प्लस वन बाई टू कर रहा हूँ, और मैं एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन बाई टू कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आगे जाके रिपीट होगा, क्योंकि पहले नेगेटिव में चलता जाएगा, बाद में यहाँ पे आया जीरो, तो जीरो के बाद पॉजिटिव में चलता जा रहा है। तो बेसिकली ये बीच वाला जीरो वाला टर्म आएगा, और जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आप आगे जाके रिपीट करेगा बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे टर्म्स लिखे उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आगे टर्म्स लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय एन कर दिया। बेसिकली जो मैंने ये चीज लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही चीज यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और फिर मैंने डिवाइड बाय एन किया है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ऐसा समझो ना कि यहाँ पे एक टर्म तो वन का भी आएगा, यहाँ से देखो एन माइनस वन बाई टू माइनस एन प्लस वन बाई टू कितना आएगा, यहाँ पे वन बाई टू कॉमन है तो यहाँ से ले लो एन माइनस वन माइनस माइनस वन, तो ये हो जाए यहाँ से आएगा माइनस वन का मॉड, तो बेसिकली वन आएगा। तो यहाँ से मैं चालू करूंगा तो यहाँ से जाऊंगा वन से लेके एन, यहाँ से वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे चलता जाएगा, वो मैंने लिखा है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ तक जाएगा एन माइनस वन बाई टू तक। यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा एन माइनस वन बाई टू आ रहा है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन बाई टू तक जाऊंगा। इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे वापस ये चीज आएगी, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, और डिवाइड बाय एन कर दिया। ये कुछ नहीं है, ये अलग से लिखा हुआ है कि यहाँ पे एन माइनस वन बाई टू टर्म्स है, ये अलग चीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर मैंने ये आ गया, फिर यहाँ इसको मैंने माना एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम क्या होता है एन, ये पूरा एन है मेरा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू किया मैंने, मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, ये इसका सॉल्विंग थोड़ी ट्रिकी थी, बट एक बार समझ में आ जाए तो फिर मतलब इजी है। ठीक है, so this was our question number 3. Now moving on to question number 4. Calculate the mean deviation about the mean of first and natural numbers when n is an even number. जैसे मैंने odd के लिए किया वैसे अपन लोग even के लिए भी कर सकते हैं. So I am leaving this as an exercise. I am moving on to question number 5. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसमें हमको निकालना है सब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मुझे सम करना पड़ेगा फर्स्ट एंड टर्म्स का। तो फर्स्ट एंड टर्म्स का सम कितना होता है मैंने बताया आपको, एन इन प्लस वन बाई टू होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, इसको मैं सिग्मा एक्स आई बोल दूं, वो कितना होता है, वो होता है एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इसके बाद मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब मैंने सिग्मा एक्स आई निकाल लिया, मेरे को एन पता है, तो बेसिकली मुझको ये चीज करनी है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली मेरा सिग्मा क्या हो जाएगा, मेरा सिग्मा हो जाएगा व्हाट इज माय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब मेरे स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो स्क्वायर का सम हो जाएगा एन एन प्लस वन एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन
इंटू 2n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक, और नीचे n तो था ही, तो डिवाइड बाय 6n माइनस n, क्योंकि स्क्वायर है तो n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, और नीचे एक n और है तो हो जाएगा 4n²। ठीक है, यहाँ से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो बेसिकली क्या बच रहा है अपने पास, अब मैं इसको खोल दूंगा। बेसिकली खोलने में मेरे पास बचेगा अंडर रूट में, एलसीएम वगैरह लेके खोल देना इसको, तो मेरे पास बचेगा अंदर 4n² प्लस 6n+2 माइनस 3n² माइनस 6n माइनस 3। ठीक, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 12 आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेसिकली मेरा ये 6n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा n² -1/12 बचेगा अभी। तो जो मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आ रहा है n² -1/12। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ऐसा स्टफ नहीं था, बस अपने को सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बोल रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम डेटा for the time taken to complete a test are calculated with the following results। number of observation दिया है, mean दिया है, standard deviation दिया हुआ है। तो further another set of 15 observations, this and this are also in seconds is now available, and we have sigma xi square calculate the standard deviation based on all 40 observations। अच्छा, ये 25 और 14 देगा अपने को, टोटल 40 observations का अपने को standard deviation निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेट के लिए सिग्मा एक्सआई निकाल लेते हैं। फर्स्ट जो 25 सेट है इसके लिए सिग्मा एक्सआई कितना होगा, सिग्मा एक्सआई कितना होता है हमने को पता है, सिग्मा एक्सआई अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू मीन। तो सिग्मा एक्सआई कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीन है 18.2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 18.2। तो 25 इंटू 18.2, ओके 18.2, तो बेसिकली कितना आएगा, ये आ जाएगा 455, सॉरी ये आ जाएगा 455, 455। ठीक, हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई आ गया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई निकाल लिया मैंने, अब मेरे को निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो अभी तो अपन ने निकाला है सिग्मा एक्स आई, मेरे को इसका कुछ और भी दिया हुआ है क्या, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा आई, फिर वहां पर जो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो सिग्मा आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिग्मा आई का स्क्वायर होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 25 माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन तो दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है मुझे 18.2। ठीक है, यही चीज होती है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो मेरा सिग्मा आई आएगा, सिग्मा आई का स्क्वायर मुझे दिया हुआ है कितना, सिग्मा आई मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.25 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सिग्मा एक्स आई के स्क्वायर के लिए सॉल्व करूंगा, मतलब तो मेरे को सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना मिल रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे, मुझको मिल रहा है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 8545 8545.0625। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे फर्स्ट वाले डेटा के लिए। अब मुझे चाहिए टोटल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए मुझे, ये तो था बस, ये तो 25 डेटा के पॉइंट्स के लिए था, ये था 25 डेटा पॉइंट्स के लिए, ये भी था 25 डेटा पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अब मेरे को चाहिए 40 के लिए, तो सिग्मा 40 के लिए चाहिए मुझे एक्स आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लिस्टिंग जो मैंने निकाली है प्लस नए वाली डेटा की अपने को दी हुई है 5524, तो लिस्टिंग प्लस 5524 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14069
14069.0625 0.0625। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई भी मैं निकालूंगा, पहले का है 455, दूसरे का मुझे दिया हुआ है 279, तो सिग्मा एक्स आई भी मैं सम करके निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा बेसिकली। सिग्मा एक्स आई फॉर 40 टर्म्स कितना हो जाएगा, 455 प्लस 279, एंड दिस इज कमिंग टू बी 734। कितना आ रहा है, 734। ठीक, अब बस मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है मुझे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अगेन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया था 14069.0625 आया था शायद, 0625 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 40 माइनस माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर, मतलब मीन अपॉन एन का स्क्वायर। मीन था 734, 734 बाय 40 का स्क्वायर। ठीक, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है 3.87। ठीक, तो ये है मेरा फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को दो डेटा दिए हुए थे, मैंने दो डेटा को ऑब्जर्व करके सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स निकाला, फिर सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया। ओके, सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ वाले में क्या बोला है, सेवेंथ वाले में बोला है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n1 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस respectively, while mean and standard deviation of another set of n2 observations are this and this. Show that the standard deviation of combined set, अरे ये वही जो मैंने ऊपर किया, जिसमें वैल्यूज की जगह ये डेटा डाल दिया, तो इसको वैसे करना है जैसे कि मैंने ऊपर वाला किया था। तो दिस इज सिमिलर वन, सो आई एम लीविंग इट। बस मैं वैल्यूज, आप इसकी जगह वैल्यूज डाल दोगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या बोल रहे हैं, 8 में दे आर सेइंग two set each of 20 observations have the same standard deviation 5. Okay, the first set has a mean 17, the second has a mean 22. Determine the standard deviation of the set obtained by combining the given two sets. Again same question. तो एक काम करते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला आएगा ये वाला, अपन लोग इसी को यूज कर लेते हैं। ये अपन लोग डिराइव कर लेंगे ना, क्योंकि मैंने 6 वाला किया, वैसे 7 वाला हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ से आ जाएगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 माइनस प्लस n1 n2 मल्टीप्लाइड बाई x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर, x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला। इसको मैं यूज करता हूँ इस क्वेश्चन में। माउस इज वेरी सेंसिटिव इन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इसमें अपन देखेंगे, अपने को जो दिया हुआ है अपन वो वैल्यू डाल देते हैं, बेसिकली अपने को आंसर मिल जाएगा। मेरे को n1 दिया हुआ है 20 इंटू s1 स्क्वायर, s1 कितना दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस n2 दिया हुआ है 20 अगेन, उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 की है, तो वो हो जाएगा 25 स्क्वायर करके डिवाइड बाय टोटल हो जाएंगे n1 प्लस n2 मतलब 20 प्लस 20 40 प्लस n1 n2 मतलब प्लस 20 इंटू 20 400। दोनों के मीन का सब्ट्रैक्शन, एक का है 17, एक का है 22। 17 माइनस 22 इज नथिंग बट 5,
5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर मतलब 1600। तो ये अपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सॉल्व कर लिया इसको। फिर जब अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे तब जो पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5.59। ठीक है, तो ये जाएगा मेरा फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, जो ऊपर वाले 7th वाले क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूला क्रैक करोगे उसका डायरेक्टली एप्लीकेशन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन इफ यू गेट इन योर पेपर देन यू कैन इजीली डू इट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9th। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है ए की वैल्यू और तुमको वेरिएंस दिया होगा बेसिकली। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मतलब जो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसमें अपन लोग अंडर रूट हटा देंगे तो अपने को वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे x दिया हुआ है, मुझे f दिया हुआ है, तो मुझे पहले तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने वो बोला, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा पहले। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये होता है मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2a, यहाँ से भी हो जाएगा 2a, 2a प्लस 2a 4a प्लस 3a 7a प्लस 4a 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16 प्लस 6 22। तो सिग्मा एफ आई एक्स आ जाएगा 22a और सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई देख लो, सिग्मा एफ आई है 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो ये है 7। ठीक है, तो बस मेरे को ये चीज चाहिए थी, मैंने निकाल ली। अभी मुझे निकालना पड़ेगा, अच्छा मुझको इसमें सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर भी चाहिए रहता है ना, तो मुझे वो भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर दैट इज 2a square plus 6a square, 6 plus 9 is 15, 15 plus 16 is 31, 31 plus 25 is 41, 51, 56, 56 plus 36, 56 plus 36 is 66, 76, 86, 86 and 6, 92। तो बेसिकली मेरा सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर आ रहा है 92 ए स्क्वायर, 92 ए स्क्वायर। ठीक, तो बस अब मैं यहाँ से सिग्मा स्क्वायर जो मुझे दिया हुआ है वेरिएंस कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 160। इसका मैं सीधे फॉर्मूला देता हूँ, 160 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर जो कि है 92 ए स्क्वायर, 92 ए स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 7 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई विच इज 22 ए डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं ए के लिए सॉल्व कर लूंगा एंड आई विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू, मतलब मुझको ऐसा आएगा कि ए स्क्वायर मेरा आएगा 49। तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो 7 इज माई आंसर। सिंपल क्वेश्चन, just apply the standard formula of standard deviation and you will get your answer. Okay, moving on to question number 10th। 10th में क्या बोला है? 10th में मुझे डेटा दिया हुआ है, मुझे बोल रहा है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज होती है, एक तो अपन लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और फाइंड द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वही है कि अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन लोग वाली टेबल बना देंगे, इसमें अपन लोग एक तरफ लिखेंगे एक्स आई मतलब ये सारे एक्स वाले, फिर एक तरफ लिखेंगे एफ आई, फिर एक तरफ निकालेंगे डी आई मतलब एक्स आई माइनस 4 जिससे मैंने फर्स्ट टेबल में निकाला था। फिर मैं निकालूंगा सिग्मा एफ आई डी आई, फिर मैं निकालूंगा एफ आई डी आई स्क्वायर, वो जाएगी मेरी टेबल। और टेबल्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा जैसे मैंने अभी तक निकाला है। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन अबव। सो मूविंग अहेड, बेसिकली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, वो एक टेबल बनानी है आपको। ठीक है, so in question number 11 there are 60 students in a class and the following is the frequency distribution of the marks obtained, so determine the mean and standard deviation of the marks। okay, तो मीन निकालने के लिए पहले मुझे सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई निकाल लूं पहले मैं। सिग्मा एफ आई कितना है? x माइनस 2 प्लस एक्स, कितना है? x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसको मैं खोल देता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ आई, एंड सिग्मा एफ आई यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा, तो दिया हुआ मुझे सिग्मा एफ आई दिया हुआ है ना 60, तो ये टोटल 60 है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा क्या, मेरे को मिल जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 60, 2x² प्लस 7x माइनस 60 is equal to 0, and then we will factorize this thing. So this will become 2x plus 15, 2x plus 15 multiplied by, I think, x minus 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो मिल जाएगी 4 और एक मिल जाएगी -15/2। ठीक है, बट अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से मेरा x कितना हो गया, x हो गया मेरा 4। ठीक है, तो मैंने x निकाल लिया, अब मुझको निकालना है मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो निकालता हूँ मैं। पहले तो मेरे को मीन निकालने के लिए निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। मेरे को पूछा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक काम भी मैं कर सकता हूँ कि मैं सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लूँ। डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस मीन, और फिर वहां से मैं निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में आई थिंक इसको मैं डिफरेंट मेथड से कर सकता हूँ सॉल्व। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज आई विल मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें मेरी फर्स्ट तो वही रहेगी एक्स आई, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ आई। ठीक, फिर मैं यहाँ पे लूंगा एक डी आई। यहाँ पे वर्ड ये नहीं है कि मैं मीन एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे ये दूसरा मेथड निकालने का। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं करता हूँ एक्स आई माइनस सम ए, वेयर ए इज व्हाट, ए इज वन ऑफ योर एक्साइज। आप किसी भी एक एक्साइज को जो आपके मार्क्स है उसमें आप किसी को भी ए चुन सकते हो। बेसिकली अपन लोग मिडिल वाला लेते हैं ताकि अपने को सॉल्यूशन सॉल्व करने में जो आसानी हो। आप इसमें से किसी को भी ए चुन सकते हो। तो लेट्स से मैं 3 को ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से 3 को ए ले लिया, तो 3 को ए लेके फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो एक्स आई माइनस थ्री, 0 माइनस थ्री इज -3, फिर 1 माइनस थ्री इज -2, फिर 2 माइनस थ्री इज -1, फिर 3 माइनस थ्री इज 0, 4 माइनस थ्री इज 1, एंड 5 माइनस थ्री इज 2। तो ये हो जाएगा मेरा डी आई। ठीक, फिर मैं यहाँ पे निकालूंगा वही सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है ना 4, वो मैं डाल दूंगा, वहां से मैं सॉल्व करूंगा सिग्मा एफ आई डी आई के लिए। तो पहले आएगा 6 -6, फिर आएगा -8, फिर आएगा -16, फिर आएगा 0, फिर आएगा 8, एंड देन आई विल गेट 10। फिर जब मैं सम करूंगा, सम करने पे आएगा कितना, सम करने पे आ रहा है -12। ठीक, क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई, और मुझे पता है मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एफ आई डी आई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। एफ आई डी आई स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो फर्स्ट वाले में आएगा 18, देन 16, देन अगेन 16, देन यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा वो तो। उसके बाद आई विल गेट 8, एंड देन 20। तो इसका सम आ रहा है मेरे पास 78। ठीक, तो इसमें मैं मीन कैसे निकालता हूँ, इसमें मीन कैसे निकालते हैं, इसमें मीन निकालने के लिए अपन लोग करेंगे मीन इज इक्वल टू, जो मैंने ए लिया है वो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक, तो इस तरीके से मैं करता हूँ सॉल्व इसको। तो यहाँ पे मेरा ए था 3, सिग्मा एफ आई डी आई है -12, और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा मीन
12/60 होता है, देन 3 - 12/60, आई एम गेटिंग 2.8। तो ये तो हो गया मेरा मीन। और स्टैंडर्ड डिविजन में वैसे निकाल लूंगा कैसे, सिग्मा एफ आई डी ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वही जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बस यहाँ पे एक अलग मैंने मेथड यूज किया, इससे मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं एक स्टैंडर्ड एक चुनता हूँ और वो एक एक्स को लेते हैं अपन लोग, बेसिकली बीच वाला लेते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी पड़े। ठीक है, so this was our question number 11. Moving on to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द मीन लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ 60 बल्ब से 650 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है अपने को। देन सेकंड सैंपल का भी ईच डेटा दिया हुआ है, फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन पहले तो मैं उसी फॉर्मूले से निकाल लूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइन प्लस n1 n2 x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर। उसका अंडर रूट से मैं सिग्मा निकाल लूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन वो आएगा मेरा समथिंग समथिंग। ठीक है, वो कुछ आएगा। उसके बाद अच्छा मुझको वही निकालना है क्या इसमें, और अच्छा सीधे सीधे वाला फॉर्मूला लगाना, कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको तो अपने कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली वाला फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो इसमें डायरेक्टली आंसर देता हूँ, डायरेक्टली आंसर आएगा 8.9, क्योंकि मुझसे वही पूछा है, उसके आगे का मुझे कुछ नहीं पूछा है। तो बेसिकली अपने को वही करना है, सिग्मा n1 दिया हुआ है 60, s1 दिया हुआ है 8, n2 दिया हुआ है 80, s2 दिया हुआ है 7, फिर x1 बार मतलब मीन दिया हुआ है 650 और x2 बार दिया हुआ है 660। तो वहां से मैं वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको यहाँ पे बोला फॉर्मूला यूज करना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में बोला है मीन एंड सॉरी 13 में बोला है mean and standard deviation of 100 items are this and this, find the sum of all items and sum of the square of the items। तो ये तो सिंपल है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना दिया हुआ है मुझे? नंबर ऑफ आइटम्स मुझे दिए हुए हैं 100, तो सम कितना हो जाएगा? सम सीधे सीधे हो जाएगा मीन इंटू 100। मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है 50, तो 50 इंटू 100 मतलब 5000 हो गया मेरा सम। सम हो गया मेरा 5000। और फिर मुझसे क्या बोला है, मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला फॉर्मूला लिख दो। सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है मुझे? स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 5, 5 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, क्योंकि मेरे को अंडर रूट नहीं चाहिए इसलिए। इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा ये मुझसे पूछा है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स, तो मुझसे बेसिकली सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर पूछा है। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर मुझसे पूछा है डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई जो मुझे दिया हुआ है 100 माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन दिया सॉरी माइनस मीन का स्क्वायर, और मुझे मीन दिया हुआ है 50, तो -50 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा यहाँ से, कितना मिल जाएगा? आई विल गेटिंग दिस थिंग टू बी इक्वल टू 251,660 251,600 सॉरी 251,600। ठीक है, तो ये है मेरे 13 वाले का आंसर। सिंपल अपने को फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो सिमिलर वे में मैं क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेता हूँ। 14 दिस इज लास्ट क्वेश्चन, फिर 15 से अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक, तो 14 में मुझे क्या बोला है? 14 में मुझे दिया हुआ है कि x - 5 इज इक्वल टू 3, मतलब सिग्मा x - 5 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे सिग्मा होगा, और सिग्मा x - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43। तो उस नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन निकालना है मुझे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना डेटा में, तो बेसिकली मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ये लोग a को 5 लेके चले होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे a 5 है, तो मैं मीन निकालूंगा। तो मीन क्या हो जाएगा? मीन अभी मैंने बताया था इस फॉर्मूले में होता है a प्लस समथिंग, तो यहाँ पे a है 5
प्लस समथिंग क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, सही होता है ना। तो सिग्मा एक्स माइनस 5 मुझे दिया हुआ है कितना, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 18। तो ये हो जाएगा मेरा मीन 5 + 3/18। तो ये आ जाएगा यहाँ से 5.17 कह रहा हूँ, मतलब 5.166 टाइप का आएगा। तो उसको मैं राउंड ऑफ करके 5.17 कर रहा हूँ, ठीक। और ये चीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे। क्या पूछा मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे निकालूंगा मैं अंडर रूट से, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर जो मुझे दिया हुआ है 43 डिवाइड बाई 18 माइनस मीन का स्क्वायर विच इज सिग्मा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 18। तो हो जाएगा -3/18 का स्क्वायर, मतलब -3/18 का स्क्वायर, ठीक। तो वो हो जाएगा सॉल्व करने पे दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1.53, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं किया इसमें, मेरे को जो वैल्यूज दी हुई थी मैंने उस वैल्यूज पुट करी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 5 दिया हुआ था। मैंने समझ लिया कि यहाँ पे A5 है और यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, अपने को दिख नहीं रहा है जस्ट। तो बस यहाँ पे A5 था, उस हिसाब से मैंने मीन निकाला, फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एंड वी आर डन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14 तक। फ्रॉम क्वेश्चन 15 वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। बाकी हाँ, इसमें थोड़ी बेसिकली चैप्टर इजी है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेशन पार्ट। बिकॉज अगर इस क्वेश्चन ये पेपर इसका कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, देन व्हाट वी वेयर वी कैन गो रॉन्ग इज जस्ट इन अवर कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इजी। कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ है ही नहीं, अपने एक बार थ्योरी पढ़ ली तो उसी का फॉर्मूले से लगा के अपने को बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट उसमें कुछ है ही नहीं, अपने को बस कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है, एंड देन वी आर डन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा इतना, एंड रेस्ट पार्ट वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, डन।